recording. So speakers like you always look for a good English. Like whenever you speak English, you always feel that I should be speaking English of world class level. And that's why you have decided to join this class, right? Now what happens when you finish the course, you can speak English, but the thing is that your pronunciation is still the same. Maybe I would say your pronunciation is very typical Hindi medium, or if you try to speak fluently, then your pronunciation doesn't work. Or if you, try to speak in good pronunciation, your fluency gets down. है ना, हमेशा दोनों चीजें साथ में नहीं हो पाती हैं. Sometimes it happens, हो भी जाती होंगी. Mostly what happens, it doesn't happen, right? क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में फ्लुएंसी डाउन हो जाती है. अगर फ्लुएंसी करना है तो फिर प्रोनाउंसिएशन चला जाता है, राइट? उसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है, डू नॉट वर्क ऑन एनी सॉर्ट ऑफ एक्सेंट. Do not look for any accent. I have to follow the American accent or the British accent or Australian accent, which are more famous than any other accent in English. You should follow your own Indian accent, guys, but always work on your word pronunciation. Word pronunciation, right? Now, if you remember, one day I told you that in our time, in this era, we have everything in our finger. They are on our fingertips, right? बस एक क्लिक किया कि हमें मीनिंग पता चल जाता है वर्ड का. The other click, you get to know the spelling of the word. The third click, you get the pronunciation of the word, right? So it's not difficult at all. Okay? अभी जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको ऑलरेडी पता है, फॉर एन एग्जाम्पल, you know the word pronunciation, right? Follow it. जो नहीं पता है उन्हें पता कीजिए and then start following. Now question arises, ma'am, how many words we should check every day for improving pronunciation? The keyword is the important part, right? Let's take the example. I am a person with enthusiastic approach. My enthusiasm is a lot when it comes to speak, to perform in front of public. अब मैंने दो वर्ड यूज किए. वन इज enthusiastic, another one is enthusiasm. Enthusiasm and enthusiastic. When I talk about enthusiasm, that is basically the word called utsaha, energy. And enthusiastic is called the energetic person, मतलब उत्साहित व्यक्ति, करेक्ट? अब ये नया वर्ड है हमारे लिए. You know the word intelligent, you know the word energetic, you know the word active. इनको नहीं देखना है. You know the pronunciation. कोई नया शब्द जिसको आपको लगता है that this word may, I don't know, maybe, or this may give another level in my language. It will add another taste to my language, right? ऐसे ही there are some words called American pronunciation अलग होता है, British अलग होता है. Example, privacy and privacy. Privacy and privacy. Should I tell you something? दोनों ही सही हैं. Privacy is basically British United जो किंगडम वाली लैंग्वेज है वो है यूके, और यूएस वाली लैंग्वेज है privacy. आपको कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है? यू कैन यूज दैट वन. यू विल साउंड प्राइवेसी और privacy, राइट? ऐसे ही वर्ड्स होते हैं कॉल्ड schedule and schedule. Schedule is American English, American pronunciation. एक्सेंट की बात नहीं कर रही हूँ. वर्ड को उच्चारण करने का, जो प्रोनाउंस करने का तरीका है वो बता रही हूँ. तो ऐसे ही जब आप बात करते हो schedule is US English, and schedule जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, we have been following the same, is called schedule British English, UK, right? हम इसमें से कोई भी एक प्रेफर कर सकते हैं. Just prefer it, right?
देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच पीपल यूज, जैसे कि हम लोग कहते हैं प्रिफर, प्रिफर, प्रीफर, हम वर्ड को दबा दे जबकि वो वर्ड एग्जैक्टली है प्रेफर, 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 प्रीफर की जगह बोलिए प्रेफर, राइट। एक और सबसे बड़ा जो चेंज आता है लैंग्वेज में, दैट इज योर, आप जो पहले से बोलते चले आ रहे हैं, जैसे इंग्लिश में होता है मटर, टमाटर, गदर, राइट। र का साउंड अर होता है, र का साउंड रस्सी जैसा होता है, र घुमावदार होता है, राइट। बट इन इंग्लिश वी डोंट हैव सच लॉन्ग आर, र, र तो होता ही नहीं है, वो होता है अर, आ और रा का कॉम्बिनेशन होता है अर, राइट। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी कॉल इट, हम कहते हैं टीचर जी, तो हम टीचर जी हिंदी में भी बोल देते हैं, जबकि टीचर एक इंग्लिश शब्द है, फिर भी हम उसे हिंदी में भी बोलते हैं टीचर जी। तो अगर आपने कभी सुना हो टीचर जी, टीचर, तो च और र भी आता है, टीचर, जबकि इंग्लिश में होता है वो टीचर, टीचर, मतलब र का साउंड नहीं है, इट्स अ, यू अ। आपको याद हो मैंने शॉर्ट फॉर्म सिखाया था आपको, मैंने कहा था कि यहाँ पे जो ए आर है ना, उसका साउंड जो होता है वो होता है अर, छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट सा र है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं ना तो वो र गायब ही है, उसको हम बोलते हैं यू आर गुड, यू आर हैप्पी, यू अ साउंड आता है। इसी तरह से जितने भी शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ई आर या ए आर है, हम उसे र प्रोनाउंस करने से बचें और उसको बोले टीचर, टीचर, टीचर। वो अपने आप साउंड जो है वो का साउंड है ना, उसमें से र बिल्कुल माइन्यूट छोटा र है, राइट। लेट्स टेक अनदर वर्ड कॉल एयर, हम उसे बोलते एयर, हम पूरा शब्द कहते हैं एयर, बोलिए उसे एयर, एयर। आपको पता है जितने भी कॉन्वेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश में, और जो नॉर्मल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश भी डिफरेंट होती है, बिकॉज वो जो हिंदी मीडियम के सॉरी जो इंग्लिश मीडियम होते हैं उनके बच्चों को साउंड सिस्टम सिखाया ही नहीं जाता, दे लिसन एंड फॉलो, राइट। तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही आप कह सकते हैं देसी इंडियन इंग्लिश है, जबकि हमें अपनी खुद की इंग्लिश डेवलप करना है विच इज इंडियन इंग्लिश, राइट। तो उसको डेवलप करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है कि इन छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करें। हम लोग कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट, लेकिन याद रखना है जब ए फॉर एप्पल अकेला सिंगल होता है तो उसका साउंड होता है अ, और जब वो दूसरे वर्ड्स के साथ आता है जैसे ए डबल पी एल ई एप्पल, ए एन एन, ओके, जैसे ए एन टी एंट, राइट। तो ये ए का साउंड वो कौन सा वाला हो जाता है, अ की जगह हो जाता है ए। तो जब सिंगल ए लिखते हैं तो उसका साउंड ए फॉर एप्पल तो ठीक है, लेकिन सिंगल है वो अ। बस इन चीजों पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, राइट। जैसे आपने बोला डॉक्टर, हम बोलते हैं डॉक्टर, हम र भी बोलते हैं, उसको शॉर्ट कर दीजिए, बोलिए डॉक्टर, राइट, वेरी गुड, रिपीट कीजिए टीचर, टीचर, राइट, बोलिए एयर, एयर। हम वो र का साउंड ही माइन्यूट बोले, धीरे धीरे आपको उसका एग्जैक्ट तरीका समझ में आने लगेगा बोलना किस तरीके से है, राइट। देयर आर मेनी वर्ड्स ऑफ दिस काइंड जिनको हम इम्प्रूव करके अपने लैंग्वेज में वो इफेक्टिवनेस ला सकते हैं, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, जब भी हम कोई वर्ड सुने उसको एज इट इज बोलने की कोशिश करें। मैं वर्ड की बात कर रही हूँ, मैं सेंटेंस को बोलने की बात नहीं कर रही हूँ, राइट। आप कोई अमेरिकन इंग्लिश वाले व्यक्ति को जब कोई सेंटेंस बोलता हुआ सुनते हैं इट साउंड्स डिफरेंट, लेकिन जब आप वो वर्ड सुनते हैं आप अपनी खुद की इंग्लिश में वो वर्ड को चेंज कीजिए, योर इंग्लिश विल ऑल्सो चेंज फ्रॉम देसी टू इंडियन इंग्लिश, इंडियनाइज्ड इंग्लिश। अगर मैं इंडियनाइज्ड इंग्लिश बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सी,
आई एम टॉकिंग अबाउट शी, राइट? एक और प्रोनाउंसिएशन चेंज बताती हूँ। हम बोलते हैं आई सिट, माई लैपटॉप इज ऑन दिस टेबल, दिस इज अ टेबल बेसिकली, राइट? सो हियर हमको कैसे बोलना है? हम लोग बोलते हैं टेबल। टमाटर तो ठीक है ना? टमाटर, जो शब्द है वो हिंदी का है, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो तो होता ही नहीं होता है। आप कभी फोनेट सुनिएगा, जो बच्चों के बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, आ आ आ, बी फॉर बॉल, ब ब ब। कभी आप एक बार कभी भी अपने मोबाइल में ये फोनिक को सुनिएगा, मतलब वो जो प्री प्राइमरी वाला फोनिक है उसको सुनिएगा, वहां पे वो बोलते हैं कर छी, छ, ची, चा, छ, छ। तो टी टाटा नहीं बोलते, पता है क्या बोलते? छी, छ, छ। तो साउंड पता है कौन सा होता है? वो होता है टेबल, टेबल। आपको टेबल बोलने की जरूरत भी नहीं, आपको अपने दोनों दांतों के बीच में कुछ इस तरह से करना है और अपनी जीभ जो है उससे साउंड बोलिए, बोलिए टेबल, टेबल, टेलीफोन, टेबल, टेस्ट, टेस्टी। अपने आप वो वर्ड में धीरे धीरे वो साउंड आने लगेगा। ऐसे ही डी फॉर डक, इट्स नॉट डक, इट्स डक, डक। तो डी, डी, वो ड नहीं है, वो है जी, जी, राइट? डेस्क, डेस्क, है ना? ड का छोटा साउंड है, स्मॉल साउंड। और टी का साउंड तो ट है ही नहीं, वो है टी, मतलब टेबल। आपको वो ठ भी नहीं बोलना है, उसमें ठ है ही नहीं, उसमें तो टेबल, टेलीफोन, टेस्ट, टेस्टी, टेस्टी, राइट? धीरे धीरे जब आप उन साउंड्स पर वर्कआउट करना शुरू करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो वर्ड साउंड है, मैं तो उसको पता है वर्ड साउंड भी नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन अ लेटर साउंड। Focus on the letter sound and you will remember, you will always be feeling कि मैं एक word को आज सीख रहा हूँ। If I'm learning today, I'm following it. हम बोलते हैं today, जबकि वो word है today, today। अपने आप बहुत ज्यादा आपको ड्रामेटिक बनने की जरूरत भी नहीं है। इस तरीके से आप अपने वर्ड साउंड पर कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी लैंग्वेज धीरे धीरे वो इंग्लिश जो है वो बिल्कुल जैसे इंग्लिश स्पीकर्स, कॉन्वेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स या स्पीकर्स बात करते हैं, स्लोली योर लैंग्वेज विल बिकम द सेम, राइट? इसके बाद आप दूसरी चीजों पर फोकस कर सकते हैं कि मैं किसी एक अमेरिकन का एक्सेंट फॉलो कर रहा हूँ स्लोली, और आई एम फॉलोइंग एनी ब्रिटिश एक्सेंट, कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस लेटर। अभी क्या करना है? छोटे छोटे साउंड्स पर फोकस करना है। अगर आपके साउंड में श और स का इशू है तो उसे दूर कीजिए, राइट? इफ यू से सी इज माई फ्रेंड, देन अपने आप को बोलिए शी इज माई फ्रेंड, राइट? अगर आपका प्रॉब्लम है कि आप कहते इज, तो अपने आप को बोलिए इट इज नॉट इज, जहाज, जहाज इंग्लिश में होता, हिंदी में होता है, इंग्लिश में तो ज इज, राइट? हम जब कहते हैं ना ट्रेन की जर्नी, तो जर्नी नहीं होता है, जर्नी, इट्स जर्नी, मतलब ज है वो वहां, तो इज, शी, राइट? इन पे फोकस कीजिए, फोकस करके बोलिए। जहां आपको लगता है दैट आई गेट स्टक और मैं शी को सी कहती हूँ, कहता हूं, तो रुक कर बोलिए शी, शी। जानबूझ के उसको जोर डाल के बोलिए शी इज माई फ्रेंड, ओके? ध्यान रखेंगे, अगर छोटे छोटे लेटर्स से अपने प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को सही करेंगे, तो आपके वो लॉन्ग सेंटेंसेस में वो इफेक्टिवनेस, वो इफेक्ट यहाँ आने लगेगा, दैट इम्पैक्ट विल शो इन योर सेंटेंसेस, ओके? एक और चीज है, आपने देखा होगा कि जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो मेरा पूरा मुंह शब्दों को प्रोनाउंस करता है,
मतलब मैं जैसे बोलना चाहूं, मुझे जो शब्द जैसे बोलना है मैं वैसे ही बोलूंगी। जैसे जर्नी, तो अगर मुझे अपना साउंड अपने होठों से बनाना है तो मैं होठों का यूज करूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, क्योंकि मुझे उस तरीके से वो बोलना होगा। अगर मुझे कहना है एयर, तो वो मेरे जो जीभ है, टंग, वो पीछे रहेगी, एयर, एयर पीछे जाएगी वो। तो मुझे अपने जो स्पीकिंग ऑर्गन्स हैं, हमारे जो लिप है, टीथ, टंग, ऊपर का हिस्सा पैलेट, एडम्स एप्पल, मुझे ध्यान रखकर बोलना होगा। अगर आपको लगता है कि डज इट वर्क, रियली इट वर्क्स। मतलब हम कहते हैं डज इट वर्क, तो मैं उसे वर्क नहीं कहती हूँ, मैं उसे कहती हूँ वर्क। आप मेरे बोलने का तरीका देखो, जीभ खुद ब खुद पीछे जा रही है, क्योंकि उसको, उस साउंड को बोलने का, उस शब्द को बोलने का, उस तरीके का हमें साउंड ऑर्गन, उसको कहते हैं स्पीच ऑर्गन, यूज करना पड़ेगा। जब आप वो यूज करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपका तरीका ही बदल गया है ना। और जब भी आप कोई भी शब्द बोलें, रुक कर बोलें। जब आप बड़े से शब्द की बात करते हैं, जो छोटे शब्द हैं जो ऑलरेडी आते हैं, दिस इज माई होम, दिस इज माई कार, दिस इज अ चेयर, तो थोड़ा सा चेयर में डिफरेंस लाना है, दिस इज तो सेम ही है। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम है, दिस तो ठीक है, मेरा इज भी है, दिस इज अ चेयर, फिर बोलिए दिस इज अ चेयर। प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस अकेले करनी है, लेकिन राइट, अपने सिस्टम के सामने बैठे, अपने मोबाइल के सामने बैठे, टर्न ऑन योर रिकॉर्डिंग, एंड फिर उसे बोलिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद हैबिट होने लगेगी। प्रैक्टिस अकेले में करें और उसका ट्रायल क्लास में करें, सबके सामने करें। अगर छोटी छोटी चीजों पर आपने वर्कआउट करना शुरू कर दिया, योर प्रोनाउंसिएशन विल इम्प्रूव एंड यू विल साउंड लाइक अ कॉन्वेंट स्कूल स्पीकर। ऑलवेज याद रखना, ठीक है। और कॉन्वेंट भी मैं क्यों बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी मैं उन स्कूल्स की बात कर रही हूँ जहां पर स्टूडेंट्स रियली स्पीक इंग्लिश एंड यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। मैं उन स्पीकर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कभी स्पीकिंग करना है, उस लेवल की स्पीकिंग सीखना है, कुछ नहीं करना है, नथिंग इज टफ हियर। What you need to do is follow the letter word pronunciation. Pronunciation भी नहीं होता है, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स मैंने सुने हैं। मैंने सुने मतलब ऑफलाइन सुना है। मैंने जितने भी स्पीकर्स आज तक ऑनलाइन सुने हैं, जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ, दे स्पीक गुड इंग्लिश, राइट। क्योंकि मैंने कहीं सुना था दैट हम जब बेसुरों को सुनते हैं तो हम बेसुरे हो जाते हैं। जब हम सुर में सुनते हैं तो हम भले ही सुर के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, पर हम सुरीले रहते हैं। तो हमें भी इस बेसुरों को नहीं सुनना है। हमें किनको सुनना है, जिनकी इंग्लिश सुन के हमको अच्छा लगता है, जिनकी इंग्लिश में वो इफेक्ट है, वो इम्पैक्ट है, वो प्रभाव है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द स्पीकर्स। कई लोग मुझे ऑफलाइन मिलते हैं, कहते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं जो मेरे साथ, जो लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ, दे आर वेरी सीनियर मोस्ट, करेक्ट। और वो लोग कहते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। तो वो इतने बुजुर्ग हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। कुछ ऐसे हैं जो मुझसे 3-4 साल बड़े होंगे लेकिन बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। फिर मैं एक बार प्रोनाउंसिएशन चेक करती हूँ कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं जानती हूँ कि ये प्रोनाउंसिएशन होता है, वो प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं। फिर मैं चेक करती हूँ उसको 2-3 बार, मैं सोचती हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं सही बोल रही हूँ, वो शायद उनको आदत है वैसा बोलने की, ठीक है। तो अब इतने एक्सपीरियंस्ड है, उनको नहीं बोलती हूँ मैं कि वो प्रोनाउंसिएशन होता है, क्योंकि हु एम आई टू टेल देम यार, मैं कौन हूँ। लेकिन जब हमें कोई शब्द पता है तो हमें सही ही बोलना है। आई एम ऑलवेज ट्राई टू स्पीक, अगर कोई मेरे सामने कुछ ऐसा बोलता है जो मैं गलत बोलती हूँ, ठीक है, और कुछ लोग जो उसे सही बोलते हैं, तो मैं उनसे ये नहीं कहती हूँ कि अरे जो मैं बोल रही हूँ वही सही है। मैं क्या करती हूँ, चुपके से चेक कर लेती हूँ,
ओ माय गॉड, फिर मेरे को लगता है ओ माय गॉड, आई हैव बीन स्पीकिंग दिस वर्ड रॉन्ग फॉर लॉन्गर टाइम, कब से बोल रही हूँ मैं रॉन्ग, राइट। जैसे कई लोग, बहुत पहले किसी ने मुझे कहा था, मैं एक स्टूडेंट आया मैनेट का हमारे यहाँ पे, बहुत सारे मैनेट के स्टूडेंट्स आते हैं। एक बार एक मैनेट का स्टूडेंट आया डेमो के लिए, और वो डेमो चल रहा था, उसके बाद उसने मुझे आके बोला कि मैम आई वांट टू आस्क कि वो क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन होता है, सजेशन होता है कि सजेशन होता है। तो मैंने उसको बहुत मैं छोटी थी, तो मैंने उसको बोला सजेशन होता है, क्वेश्चन सजेशन कुछ नहीं होता। देन वो चला गया, सुनकर वो डेमो के बाद वापस नहीं आया, क्योंकि उसे लगा कि उन्हें खुद को सीखने की जरूरत है। तो जब मैंने डिक्शनरी में चेक किया, हम लोग ऑक्सफोर्ड यूज करते हैं लैपटॉप में, तो उसने मुझे साउंड सुनाया सजेशन, क्वेश्चन। द डे आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? इसलिए नहीं कि वो डेमो लेके चला गया, मुझे ये बुरा लगा दैट आई शुडंट हैव सेड इट। तो मैंने एक उससे एक चीज सीखी कि कभी भी डू नॉट से नो टू एनीबडी, चेक इट, ठीक है, एंड देन चेक कंफर्म एंड से देखो यार ये वाला प्रोनाउंसिएशन सही है जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। और अगर गलत है, आपका गलत है, तो आप चुपचाप सुधार लो, बट नेवर से दैट आई एम राइट यू आर रॉन्ग, चेक इट फर्स्ट। हाँ, चेक कर लिया तो बोलिए इसका यही होता है, देखिए मैं चेक करके बोल रहा हूँ, लाइक दिस, बी वेरी हम्बल इन दैट, बी वेरी पोलाइट इन दैट, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो सजेशन एंड क्वेश्चन, इट इज नेवर क्वेश्चन एंड सजेशन। ये हमने हमारे स्कूल्स में सुना हुआ है, हमारे जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं उनमें सुना है हमने, राइट। लेकिन इस तरीके से हमें कभी कभी कोई दूसरे भी सिखा जाते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लिश का, बट वो सिखा जाते हैं बिकॉज वो उन्होंने सुना है कहीं पर, एंड उसको फॉलो भी करने लग गए सुनकर। तो कभी कभी तो हम गलत फॉलो कर लेते हैं, बट कई बार हम सही भी फॉलो करते हैं, राइट। सो वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन एवरी सिंगल डे। इसको इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? लेट मी टेल यू। सोने के पहले या उठने के बाद, जब खुद का टाइम होता है ना, मी टाइम, और लंच के बाद जब आप ऑफिस में होते हो एंड यू हैव सम टाइम विद यू, पुट योर ईयर प्लग्स, राइट, एंड लिसन टू एनी वन स्टोरी, राइट। स्टोरी इन द सेंस एनी वन स्टोरी जो इंग्लिश में हो, लिसन टू इट, ठीक है। कोई कोई फॉरेन स्पीकर बोल रहा है, उसकी इंग्लिश सुनना है। कोई इंडियन स्टोरी को हिंदी मीडियम वाले स्टाइल में बोल रहा है, अवॉइड इट, राइट। अदरवाइज यू लिसन टू, आप लोग जानते हैं ना, टेल मी इन द चैट, यू टेल मी, डू यू नो सदगुरु? सदगुरु ईशा, Yes. राइट, वेरी गुड। ही इज अ साउथ इंडियन पर्सन बट ही स्पीक्स वंडरफुल इंग्लिश, लिसन टू हिम, राइट। उनकी इंग्लिश जो है ना अच्छी है, एंड उनके वो सब टाइटल्स भी होते हैं नीचे, राइट। अच्छा, डू यू नो गुरु गौर गोपाल दास? डू यू नो हिम? दैट इज इस्कॉन वाले जो हैं, वन Yeah, I know. बाल्ड हेडेड पर्सन, राइट। वो बहुत सारे उनके लेक्चर्स आते हैं, रील्स आती हैं टेलीविजन इस पे, राइट। उनको सुने, ही स्पीक्स वंडरफुल इंग्लिश, इंडियन पर्सन स्पीक्स वंडरफुल इंग्लिश, यू कैन लिसन टू हिम, राइट। लिसन टू, अगर आप लोग और अच्छा कोई अच्छा स्पीकर चाहते हैं, तो डू यू नो अबाउट शशि थरूर? राइट, शशि थरूर, है ना? डू यू नो हिम? He is the spokesperson from Congress. He is author and writer also. He is very famous in India, but not only in India, he is very famous in abroad for his language skills in English. Understood? So, unko suniye, listen to him. He speaks wonderful. I mean, if you count Indians, he is number one in that, Shashi Tharoor. अगर आप उनके लेवल की इंग्लिश समझते हैं, नहीं समझते तो बाद में सुनने का, आफ्टर 15-20 days ऑफ प्रैक्टिस लिसन टू हिम, राइट। शशि थरूर के बारे में बोला जाता है, वंस ही वाज स्पीकिंग इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड वो इंडियंस के ऊपर बात कर रहे थे कि इंडियन से आपने क्या लिया है, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियंस एंड इंडियन हिपोक्रेसी। तो वो बंदा वहां पे इंडियंस, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसने वहां पर
एजुकेशन के बारे में बात चल रही थी. He gave such a speech. You won't believe British people next time came to listen to him with an English dictionary because they did not understand many words what he spoke, the way he used the vocabulary. So Shashi Tharoor is the a great knowledgeable person in English, right? ऐसे ही छोटे छोटे जो मैंने आपको क्लिपिंग्स बताए हैं, 1 minute, 50 seconds, 2 minutes, not more than 2 minutes. You watch them and you will feel, yes, I'm improving, right? Listen to sometimes Sudha Murthy ji. She also speaks English. You can start with her also. Life lessons dete hain. She speaks so nicely. Listen to her. These are the known Indian people who speak good English. 1 minute की इनकी reels और videos available हैं. Do not give much time. Watch one video 3-4 times, but watch small one. Do not listen as a work. Listen as choice. Right? मेरा choice है, मैं सुन रहा हूँ. अरे मैम ने बोला, that's why I'm listening. No, do not do that. Okay? उससे दो चीजें होंगी. One, you will improve your pronunciation or you will improve your English. Second, you will learn many words, simple words, right? उसी में आप कुछ एक नया लाइफ लेसन सीख जाएंगे. They speak very nicely, right? And they speak about our life skill they teach us. So listen to them, follow them. Okay? Can you repeat the names I told you guys? Tell me quickly. जो मैंने आपको नाम बताया उनमें से कितने लोगों के नाम आपको याद है? Tell me quickly. One is Sadhguru. Okay, another one. Other than Sadhguru, other Sudha Murthy. Good. Sudha Murthy ji. Okay, and Shashi Tharoor. Okay, and Shashi Tharoor को थोड़ा सा बाद में भी सुन सकते हो, कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं. But he speaks very nicely. हाँ, बहुत अच्छी British English में बात करते हैं. Very nice accent he has got. Okay. Do you remember one more? Guru Gopal Das. Yes. From Spawn, he is there. Very nice. Listen, follow anyone, right? और अगर आपको लगता है that you are now good at speaking and you want some English speakers like from foreign country, then there is a person called Robin Sharma. Follow him. There is another Indian called Shiv Khera. जानते होंगे कुछ लोग, है ना? उनकी एक बुक बहुत फेमस है, You Can Win. That book is very famous, right? So Shiv Khera. First किसको सुने मैम? Start with Guru Gaur Gopal Das. Sudha Murthy is also wonderful. First Sudha Murthy or Guru Gaur Gopal Das. Sadhguru, you can hear him, but उनके साथ में एक बस छोटी सी चीज है, because he is South Indian ना, तो थोड़ी सी English का pattern अलग है, तो you can listen to him third time, third person. Okay, and then you can follow Shiv Khera. Shiv Khera is British Indian, and he is basically a management guru. He has written wonderful world, like one Guinness Book World Best Booker Sailor Award winner is Shiv Khera. वो Indian है, तो he speaks good English. Another one is Robin Sharma. Listen to Robin Sharma also. Robin Sharma is author, writer, management guru, life skill trainer. Okay, Robin Sharma is basically American. His father belongs to India, so Robin Sharma, but his English is completely American English. He doesn't speak Indian. His English is American English because he is American citizen, belong to Kashmir. His father belonged to Kashmir. Okay, wonderful. चलो, इन लोगों को एक एक करके फॉलो कीजिए. सुधा मूर्ति को सुनिए. सुधा मूर्ति never speaks in Hindi. She always speaks in English because she is more comfortable in that.
and Guru Gaur Gopal Das ji, because he always gives his lectures in English and very nice lectures he gives. Follow him. English के लिए तो उन्हें follow कर ही सकते हैं. I am not promoting any religion here, guys. And then we have Sadhguru, we have Shashi Tharoor ji. Follow them, right? They speak good English. You can follow them. Okay. चलिए अब आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पर. टुडे वी टॉक्ड अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. आज इसलिए बता दिया है बिकॉज यू नीड टू फॉलो इट. आपको फॉलो करना पड़ेगा. ओके. नाउ लास्ट टाइम आई स्टिल रिमेम्बर we were doing a conversation. Akash was doing a conversation with Gayatri. Am I right? Yes, ma'am. Okay. Okay. So today we are not going to finish doing all these things that okay, nice to meet you and all. But I have another topic today for you all, guys. This topic is a spoken English topic in which you guys are going to talk about your, ideal person. Who are ideals? Ideals means others. The person whom you like to follow. In other words, I would say the path maker who has achieved great heights in his or her life, and now people are following him or her. People like me, like you, following. What are we following? The way he or she achieved success. The way he told us that this is how he got failed, he or she got failed, and this is how he or she got success, right? Then we start following these people. We also start knowing about their lives, their struggle, the kind of shortcomings they had, the kind of strength they had, and then they work on them, and then they became successful, right? See, there are two kinds of achievers. One who achieved by luck, the other people who achieved by their hard work. So I am not being controversial here. I'm not telling against about somebody. आज जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनमें से आप 60% यूट्यूबर्स को देख लीजिए. मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर they are from some entertainment industry, and they dance and they entertain people and they get the followers. Who are their followers? Their followers are the youngsters of India, teenagers of India. Now हमारे यहाँ teenagers ज्यादा हैं, उनके पास mobiles भी हैं, so they like, they subscribe, and that's why they are getting more followers and subscribers, right? Whereas the people, let's take example of the people like, the people who have really achieved something in their lives. People know about them rarely. They are successful, but they don't have these many followers or subscribers because they don't entertain people, right? So now we should be able to decide हमारे ideal कौन है. वो लोग जो entertainment industry से हैं या वो लोग जो हमारी industry से हैं. If you want to achieve great heights in entertainment industry, you can follow them. You can say that, yes, I like them, I follow them. Take the example of one very famous YouTuber called Elvish Yadav. See, I'm not against somebody, but I don't understand. Okay, I'm asking you, what has he done in his life? What is he actually? What is his core, what is his skill, core skill? What does he teach? Or what does he do actually on YouTube? Did you see him ever? Elvis, Yes. what Yes, does he do? he's a YouTuber only. Like YouTuber, but what is the content he makes? nothing Roasting, special. roasting others. हाँ, रोस्टिंग तो अभी चालू किया जब से वो थोड़ा फेमस हुआ है. He is a blogger also, ma'am. He's a vlogger, very nice. He's a vlogger. Vlog में क्या दिखाता है वो? Ma'am, his real life is like हाँ, मतलब कि कहाँ रहे.
he shows his vehicles, right? His this car, that car, his friends, his boys, and he is going on a road trip, or he's showing his house which he's making by making money from YouTube and all. Correct or not? Night Yes. going night parties, and then some sort of he has good gang of boys, और उनको उसके फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे हरियाणवी हैं, कुछ डेलियट्स हैं, तो वो वही सब दिखाता है. आर यू लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिज लाइफ? No. बट आप एक चीज सीख रहे हो, No. अरे ऐसा करके ना अमीर बनना और ऐसा ही घर बनाना है, ऐसे ही गाड़ी घुमाना है, ऐसा ही करना है. एम आई करेक्ट और नॉट? आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स, राइट? है ना? राइट? तो ये डिफरेंस है. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी अगेन, इट इज माई पर्सनल चॉइस बाय द वे, राइट? बट इफ यू सी पीपल जिनके मैंने अभी नाम लिए, इफ यू सी पीपल like who are you know na, great people like Tarla Dalal, right? She is a YouTuber long back and sharing her cooking recipes for the people who don't know cooking. Good Parthna, right? There are people, let's take example of R Sandeep sir. What is he doing? Is he sharing any entertainment field or something? No, but he is sharing some knowledge what he has. So you are learning and you are sharing. There are lot people like this. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे आप उनको देख लीजिए. कौन है वो? आनंद महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, right? He shares inspirational videos on his Twitter so that people get to know about the real talent in India and he helps them. वो हमें क्या बता रहे हैं? ही इज टीचिंग समथिंग टू अस ना, कि भाई ऐसे लोगों को ध्यान रखो, ऐसे टैलेंट भी है इंडिया में. सो